द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ये कॉस्ट होती है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट यू नीड टू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आप ये कॉस्ट पे कर सकें। एक तरफ कॉस्ट जो होती है वो होती है आपके एक्सपेंस, जो कि कैपिटल रेज करने में आप इनकर करते हैं, और दूसरी तरफ यही मिनिमम कॉस्ट होती है जो कि आपको अर्न भी करनी है अपने कैपिटल पे, सो दैट यू कैन पे द एक्सपेंसेस। You can read, it is on your screen. The company determines the quantity of capital in the capitalization, कि हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए, but the company considers the forms of capital in capital structure. Forms of capital means कि कौन कौन से सोर्सेज से हम कैपिटल रेज करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, इक्विटी कितना परसेंट होगा, डेट कितना परसेंट होगा, प्रेफरेंस कितना परसेंट होगा। When the company is required, when the company requires capital, it collects it from various sources and uses it. The company pays for collecting and using the capital, and that is known as the cost of capital. ठीक है, आगे समझ में what is cost of capital? The company is paying for collecting and using the capital, and this is known as the cost of capital. The different sources of collecting and using the capital is known as the cost of capital. कौन कौन से different sources हैं? Cost of equity share capital, cost of preference share capital, cost of debt capital and cost of retained earnings, जिसमें से आपके syllabus में equity share capital, preference share capital and debt capital. Clear? Understood? Okay. Then let's come to important definitions of cost of capital. First definition by Milton H. Spencer. The cost of capital is the minimum rate of return which a firm requires as a condition for undertaking an investment. क्योंकि ये minimum cost आपको पे करनी है तो इतना ही आपको earn भी करना है. Second definition, the cost of capital is the minimum required rate for earning or the cut-off rate of capital expenditure. Third definition, cost of capital is the rate of return which a company must earn as an investment to maintain the value of the company. एक तरफ it is the cost of raising capital from the market, and secondly cost of capital is that minimum rate that you need to earn to maintain the value. ठीक है, ताकि आप अपने expenses पे कर सकें. तो you can learn definition 1 and definition 3. Definitions आपकी business economics की book में भी दी हुई है, उसमें से आप learn कर सकते हैं. Coming to the significance of cost of capital. The concept of cost of capital is very important in financial management. See, cost of capital is a part of financial management, and financial management is studied as a part of business economics. ठीक है, तभी applied business economics group में financial management आता है, क्योंकि internally finance is managed by the finance manager of the company. ठीक है, and business economics covers almost all the aspects of a firm. It plays an important role in evaluation of financial efficiency of management, determination of loan policy, evaluation of fund decisions and other financial decisions. क्या क्या importance है? Helpful in taking decisions of capital budgeting. ठीक है, कैपिटल बजटिंग में क्या था, आपको एक फिक्स्ड असेट एक्वायर करना था. फिक्स्ड असेट एक्वायर करने के लिए यू नीड फंड्स. अब वो फंड आप किस तरीके से रेज करेंगे? थ्रू इक्विटी, थ्रू प्रेफरेंस, थ्रू डेट कैपिटल, या आप लोन लेंगे? किस तरीके से आप रेज करेंगे? दैट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ योर असेट.
अगर आप 1 करोड़ की मशीनरी ले रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, 1 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो 1 करोड़ आप किस तरीके से रेज करेंगे? क्या पूरा का पूरा इक्विटी से करेंगे, या इक्विटी और प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन होगा, या इक्विटी प्रेफरेंस और डेट का कॉम्बिनेशन होगा? ओके, सो ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है हाउ यू आर गोइंग टू रेज द फंड्स इन कैपिटल बजटिंग. देन हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. हमेशा आप फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज एंड फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज के बीच में बैलेंस बनाते हैं. अगर फिक्स्ड का रेशियो ज्यादा हो गया तो आपकी इनडेटनेस बढ़ जाएगी. जितना ज्यादा रेशियो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज का होगा उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स फ्लक्चुएट हो सकती है, एंड इन केस आपकी उतनी अर्निंग्स नहीं हुई तो भी अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी है देन यू नीड टू पे द फिक्स्ड अमाउंट. लेकिन इक्विटी में क्या है, इट फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द अर्निंग्स. अर्निंग पर शेयर फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा है, वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा. इट विल लीड टू इनडेटनेस. इवन दो आपकी अर्निंग्स कम है, उस केस में भी आपको उतना फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है. हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मींस इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स. ठीक है, कितना आपको रिटेन्ड अर्निंग्स रखना है, या लोन से कितना आपको लेना है. आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हम चीज पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में. ठीक है, कि हम किस कॉम्बिनेशन से अपने फंड्स रेज करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगा. एवरी कंपनी विल ट्राई टू कीप द कॉस्ट एट इट्स मिनिमम. कभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए. चाहे कोई भी तरीके की कॉस्ट की हम बात करें, चाहे हम टोटल कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, या वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, या हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, wherever this word cost is involved, the company will always try to minimize the cost. ठीक है, तो with the help of cost of capital वी कैन एनालाइज कि अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट क्या है एंड हमारे लिए क्या ज्यादा सूटेबल है, या हमें अपना पोर्टफोलियो जो है सिक्योरिटीज का किस तरीके से तैयार करना चाहिए. इक्विटी कितना होना चाहिए, डिबेंचर्स कितना होना चाहिए, प्रेफरेंस कितना होना चाहिए, तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए या दो का कॉम्बिनेशन चाहिए. ओके, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट. देन हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट. Cost of capital